Good morning students, this is class 9th and today we will do some more question of exercise 6.2 of lines and angles. Okay, in previous lecture we have done 3 question of exercise 6.2. Today we will try to do rest of the question. Question number 4 says in the figure PQ is parallel to ST given that PQ is parallel to ST, angle PQR is equal to 110 and angle RST is equal to 130 degree, and the next term is to find angle QRS. Okay, now we will also draw the diagram. The diagram is like this. PQRST. Okay, this one is 110 degree, this one is 130 degree और ये आपस में पैरेलल है. साथ में यहाँ हिंट भी दिया है कंस्ट्रक्शन के लिए. तो मैंने आपको बोला था कभी कभी हमें कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है. तो यहाँ हम तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन, यानी कुछ चीज़ों का निर्माण आप करेंगे. क्या निर्माण करना है? विड्रॉन हम बनाते हैं या बनाएंगे. विड्रॉन अ लाइन, सपोज कर लीजिए ये लाइन जो है कि आपका ए बी हो गया, लाइन ए बी विच इज़ पैरेलल टू रेस्ट ऑफ द लाइन्स. लाइन ए बी which is parallel to PQ and ST and passes through R. इस तरीके से आप स्टेटमेंट लिखकर बता देंगे कि आपने क्या किया है. फिर इसके बाद फिगर पे ही हम कंसिडर कर लेंगे कि यहाँ पे 3 एंगल बन रहे हैं, से एंगल 1, 2 एंड 3. तो आप देख सकते हैं एंगल 1 और 110 का रिलेशन. यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको? अलाइड एंगल यानी कोइंटेरियर. तो कोइंटेरियर एंगल तो यहाँ काफ़ी इजी हम लोग प्रूफ में लिख सकते हैं. चूँकि PQ इज़ पैरेलल टू AB एंड QR ट्रांसवर्सल. इस तरीके से आप स्टेटमेंट दिखाएंगे. Then you can write angle 1 plus 110 is equal to 180 by allied angle यानी को इंटीरियर एंगल. तो एंगल 1 क्या आ जाएगा? 70 डिग्री. ओके, सिमिलरली you can also find, say equation 1, ST is also parallel to AB and SR is transversal. Okay, transversal. Now you can write angle 3 plus 130 is equal to 180 by same property allied. So angle 3, the measure of angle 3 becomes 50 degrees. Say equation 2. Now you can consider angle 1, 2, 3 because we need to find 2. So angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree by which property? Straight angle property और लीनियर पेयर एक्सियम. क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है तो एंगल 1 की वैल्यू आपने ले लेना है इक्वेशन 1 से. एंगल 2 हमको पता करना है, तो एंगल 2 हमारा क्या है? QRS. एंगल QRS और एंगल 3 की वैल्यू 50 डिग्री इज इक्वल टू 180. सो एंगल QRS इज इक्वल टू 180 माइनस, और इन दोनों का सम हो जाएगा 70 प्लस 50. सो 180 minus 120 degree. So your result becomes 60 degree. Okay, this is very easy. I hope you understood. Now the next question, question number 5. Question number 5 says in the figure, so first of all we will draw the figure. Figure is like this.
It means it has given AB is parallel to CD, and one triangle is there, PQR, and some angles has shown Y 50 degree and 127 degree. Okay, 127 degree. Now question asks, if AB is parallel to CD, so given things are AB is parallel to CD, angle APQ is equal to 50 degree, and angle PRD is equal to 127 degree. Okay, next topic, to find angle X and angle Y. Here we do not need to construct anything, so let's start, because both the line are parallel, so we can put the symbol of parallel sign. Proof. So what is the proof? This is very easy. Listen, first of all we are going to find the value of X. So here we can write AB is parallel to CD and PQ is transversal. Okay, so therefore we can compare this both the angle. So angle X is equal to 50 degree by alternate interior angle property. Okay, तो पहली वैल्यू आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, सीधे आपको पहली वैल्यू पता चल गई। अभी क्या करेंगे, अभी y निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ पे ये पूरा y, ये दोनों एंगल जो है कि 127 के से कंपेयर करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसमें किसी और मेथड को भी अपना सकते हैं, जैसे लीनियर पेयर से आप पहले ये एंगल निकाल लेंगे, फिर जैसा कि हम जानते हैं किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो y की वैल्यू आप इन दोनों को 180 से घटाकर निकाल सकते हैं। लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं नॉर्मल वे फॉलो करने। पहली वैल्यू मिल गई, दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगेन वी विल राइट AB इज पैरेलल टू CD and now PR is transversal. So here we can write angle APQ and QPR. Okay, angle APQ plus angle QPR, ये दोनों एंगल मिलाकर ये पूरा एंगल होगा। ओके, is equal to angle PRD by same property alternate interior angle. Okay, so what is APQ? APQ is 50 degree, PQR is angle Y is, and PRD has given 127 degree, so angle Y is equal to 127 minus 50, so 77 degree. Okay, so your result becomes 77 degree and 50 degree. I hope you understood. Now the last question, question number 6. First of all we will draw the diagram. PQ is a mirror, so reflecting surface जो है PQ का डाउन साइड है, तो पॉलिश सरफेस जो है अप साइड हम बना देंगे। ओके, और दूसरा मिरर कौन सा है? दूसरा मिरर है RS में पॉलिश सरफेस डाउनवर्ड है और रिफ्लेक्टिंग ऊपर है। एक रे है जो A से B की तरफ जा रही है और स्ट्राइक कर रही है एबव मिरर को, और स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है और फिर अगेन स्ट्राइक कर रही है C पर RS मिरर में, और अगेन ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। इन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो ये मिरर हैं, इसको मान लेते हैं M1, मिरर 1 एंड मिरर 2, ये दोनों पैरेलल हैं। तो गिवन में हम लोग लिख लेंगे मिरर 1 M1 इज़ पैरेलल टू, या हम सीधे नाम लिख सकते हैं PQ इज़ पैरेलल टू RS हैज़ गिवन। ओके,
फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक टू द मिरर पी क्यू एट बी एंड रिफ्लेक्ट अलॉन्ग विथ सी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। दूसरी बात जो प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो किसी भी लाइन को प्रूफ करने के लिए आपको उसमें क्या प्रूफ करना होता है, या तो आप उसके जो है कि करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखाएंगे, या उसके अल्टरनेट एंगल को, या एलाइड एंगल को। ओके, तो अगर हम अल्टरनेट एंगल इसका इक्वल दिखा देते हैं, जैसे ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर दिखाने में हम लोग सफल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ए बी जो है सी डी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से, कन्वर्स प्रॉपर्टी से, कन्वर्स ऑफ थ्योरम। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें करना क्या है उस चीज़ को देखते हैं। ये दोनों लाइन तो पैरेलल है, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप सभी जानते हैं क्या होता है। अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस पर कोई रे इंसिडेंट करती है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, और इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं। ओके, तो I इज इक्वल टू R बोला जा सकता है, कब, जब हम यहाँ पर, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल किसे बोलते हैं फिजिक्स में, परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल। ठीक है, एक ही बिंदु पर लाई करें। तो हमें यहाँ क्या करना है, चूँकि बात रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी की हो रही है, तो वी कैन कंस्ट्रक्ट अ नॉर्मल एट बी एंड एट सी। ओके, तो हम यहाँ पे नॉर्मल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर लाइन। यहाँ पर भी नॉर्मल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। नॉर्मल कंस्ट्रक्ट करने से क्या फ़ायदा होगा, आप ध्यान दीजिए। हमने मान लेना है कि ये इंसिडेंट है, इसलिए यहाँ पे कौन सा एंगल, एंगल R, और ये एंगल रिफ्लेक्शन है ना, एंगल I, सॉरी, एंगल I एंड एंगल R, ये आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पे इक्वल का सिंबल बाय प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये एंगल I डैश एंड एंगल R डैश, ओके, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और वन मोर थिंग जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे KL। ओके, K एंड L, तो KL भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं पैरेलल लाइन के। तो ये सारे फॉर्मेशंस जो है कि होंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला स्टेप कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन KB इस परपेंडिकुलर, यानी हमने जो है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया KB को, किस पर, PQ पर। KB is perpendicular at PQ and LC is perpendicular on RS. Okay. Given that AB is parallel to CD, so therefore KB is also parallel to, KB must be parallel to LC. Okay, ये भी आपस में पैरेलल हो जाएगा। और हम लोगों ने अभी प्रूफ करना है, तो प्रूफ के अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मीन्स एंगल I इज इक्वल टू एंगल R एंड एंगल I डैश इज इक्वल टू एंगल R डैश। ये दो वैल्यूज जो है हमने ले लिया। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 आप कह सकते हैं। एंगल R और एंगल I डैश आपस में इक्वल हैं, आप इक्वल दिखा सकते हैं। ओके, तो चलिए करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, लिखना है यहाँ पर कि KB इज पैरेलल टू LC एंड BC इज ट्रांसवर्सल एंड BC इज ट्रांसवर्सल। So therefore angle R
इज इक्वल टू एंगल आई डैश बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप डायग्राम में देख सकते हैं। ओके, और जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि दोनों तरफ हम किसी भी यूनिट से सेम यूनिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बोथ साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 एंगल आर इज इक्वल टू 2 एंगल आई। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, क्योंकि 2/2 अगर 2 आप ट्रांसपोज करेंगे 2/2 होगा, उसका मतलब 1, और 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इट मीन्स 1 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो इसीलिए हमने इसको एक्सपेंड करने के लिए दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब 2 एंगल आर को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल आर प्लस एंगल आर, और 2 एंगल आई को क्या लिख सकते हैं, एंगल आई डैश प्लस एंगल आई डैश। ओके, नाउ इक्वेशन 1 में आपने क्या करना है, एक एक वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 यू कैन राइट एंगल आई at the place of r, so एंगल I प्लस एंगल R, और यहाँ पर भी आप एक एंगल को एंगल I डैश को एंगल R डैश लिख सकते हैं, एंगल R डैश। ओके, तो आपने प्रूफ कर दिया। सो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो अभी क्या लिखेंगे, नाउ बोथ द एंगल फॉर्म एंगल ABC and this both the angle form angle BCD और DCB। तो एंगल BCD, ये दोनों एंगल कौन से है भाई, अल्टरनेट एंगल है, और आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ओके, सो हियर वी कैन राइट therefore line AB is parallel to CD by converse of alternate interior angle। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है, उसके कन्वर्स एक्सियम क्या देगा, लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हैंस प्रूव। दिस इज काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आपने देखा। आप आई और आर की जगह 1 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई आर मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये टॉपिक रिफ्लेक्शन का था। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।